Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Aurad. Now today we start a new chapter as fraction, right? What is fraction? Fractions are the form of P by Q, right? तो उसे हम numerator and denominator कहते हैं, right? The numbers are in the form of P by Q are called fractions and as well as rational numbers. राइट तो रैशनल नंबर को ही हम फ्रैक्शन भी कहते हैं राइट तो सी हियर द सेकंड चैप्टर एज फ्रैक्शन राइट द नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p by q right are called fractions and this is numerator तो NR एंड दिस इज डिनोमिनेटर राइट तो आपको फुल फॉर्म में लिखना है तो लिखो आप राइट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर See here, fractions, the numbers are in the form of P by Q or A by B, right? तो P को हम न्यूमरेटर कहते हैं और Q को डिनोमिनेटर. Or you take A by B, right? Or 5 by 3, right? 5 is called numerator and 3 is called denominators. The numbers are in the form of P by Q or A by B. Then the numbers are called fractions, right? तो फ्रैक्शन क्या है द फ्रैक्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ p by q और a by b राइट तो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन तो उसमें से फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन राइट फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन definition of proper fraction. See here, what is proper fraction? The proper fraction have their numerator less than their denominator, or fraction is a part of whole. The numerator of a proper fraction is, तो लिखो आप the numerator of a proper fraction the numerator of a proper fraction is always less than the denominator. Right? What is proper fraction? The numerator of a proper fraction is always less than the denominator of the fraction. So for example, see here, for example, 2 by 11, 5 by 7, 3 by 8. See here, तो डेफिनेशन देखो प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. तो इसमें से जो डिनोमिनेटर रहेंगे वो बड़े नंबर्स रहेंगे और न्यूमरेटर छोटे नंबर रहेंगे राइट. तो सी हियर द डेफिनेशन द न्यूमरेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर से छोटे रहेंगे राइट. 2 by 11, 5 by 7, 3 by 8. See here, denominators are greater than numerators, right? तो इसे 2, 5, 3 को हम न्यूमरेटर कहते हैं, 11, 7, 8 को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, right? Proper fraction, the proper fraction of a number is always, or the numerator of a proper fraction is always less than the denominator of the fractions, right? It is the प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन है.
तो सेकेंड डेफिनेशन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स the denominator or the numerator is always less than the denominator. तो इसका अपोजिट होगा improper fraction, a fraction whose numerator is a fraction whose numerator is greater than or equal to the denominator is called an improper fraction, right? See here, तो proper fraction क्या है? The numerator is always less than the denominators are called proper fraction. Improper उसका opposite है, right? A fraction whose numerator is greater than or equal, तो greater भी रहेंगे और equal रहेंगे, equal to the denominator is called an improper fraction. For example, see here, 5 is divided by 3, 7 is divided by 2, 9 is divided by 7. See here, denominators are less than the numerators. तो इसमें numerator जो है वो बड़े हैं और डिनोमिनेटर क्या है, छोटे हैं. और 5 by 5, 3 by 3, 7 by 7. See here, definition of improper fraction, a fraction whose numerator is greater than or equal to both numerator as well as denominators are equal, right? तो उसे हम क्या कहते हैं, improper fraction कहते हैं. Okay. Next, third type, mixed fraction or mixed number. Mixed fraction, right? So see here, mixed fraction. What is the definition of mixed fraction? An improper fraction written as a combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction, right? So mixed fraction is a combination of a whole number and a proper fraction. Proper fraction में क्या रहेगा? The numerator is always less than the denominator. See here, so 3, 5 divided by 7. See here, this is 5 by 7 is the proper fraction है और 3 क्या है, whole number है, right? तो 3 upon 5 by 7, right? So 3 upon 5 by 7 is a mixed fraction, or 2, 3 by 5, right? These are the example of mixed fraction, right? Next definition is equivalent fraction. Equivalent fraction. तो देखो, equivalent fraction बोले तो क्या है?
right? So see here, equivalent fraction are equivalent fraction are those which have same value. See here, definition of equivalent fraction. Example, see here, example of equivalent fraction as 2 by 5, 4 by 10, 6 by 15. तो देखो 2 by 5, और इससे भी आप 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 2 5 जा, इसे 3 से करो, 3 2 जा 3 5 जा 15, 2 by 5, 2 by 5, 2 by 5, राइट। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद वही आएंगे, तो जो p by q के फॉर्म में, जो अब देखो इसका 2 by 5 है, इसका भी 2 by 5 आएगा, इसका भी 2 by 5 आएगा, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट लाइक फ्रैक्शन, definition of like fraction, right? What is a like fraction, right? Like fraction have the same denominator, the two fraction have the same denominator, then we call as like fraction. तो लिखो आप, like fraction have same denominator, right? Then, or if two fraction have the same denominator, then the fractions are called like fractions. See here, example of like fraction: 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7. These are the examples of like fractions. See here, every fraction have the same denominator as 7, right? So like fraction means every or two fractions have the same denominator, then these two fractions are called like fractions, right? The like fractions examples are given. See here, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7 and 5 by 7. These four fractions have the same denominator, then these four fractions are called like fractions. Next definition, unlike fraction. See here, what is unlike fraction? The unlike fraction have different denominators, right? Have different denominators. You write here, so definition of unlike fraction. Unlike fraction have different denominators, right? Then the fractions are called unlike fractions, right? To see here, example of unlike fraction: 3 by 5, 2 by 7, 5 by 8. See here, these fractions have different denominators, then this type of fractions are called unlike fractions, right? So next we go to solve example. Before that, once again we revise it. Okay, revise it करेंगे आप. तो proper fraction means the numerator is always less than the denominators are called proper fractions, right? तो proper fraction में क्या रहेंगे? Numerator denominator से भी छोटे रहेंगे, right?
तो उसे हम क्या कहेंगे, राइट, प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल 3/5, राइट, द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट. नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर्स आर ऑलवेज लेस देन द न्यूमरेटर और इक्वल टू, राइट, 5/3 or 5/5 is improper fraction. Next, mixed fraction, a whole number with proper fraction. होल नंबर के साथ जो प्रॉपर फ्रैक्शन रहेंगे उसे हम कॉम्बिनेशन में रहेंगे उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे. तो 3 is a whole number and proper fraction 2/5. This is 2/5 is a proper fraction, 3 is a whole number. The combination of whole number and proper fraction are called mixed fraction. Next, equivalent fraction. The value of fraction will be same, then the fractions are called equivalent fraction. तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे उस जो फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो सेम होगा, उन दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करेंगे. नेक्स्ट, लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर. तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे. अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे. ओके, सी एग्जांपल नंबर 1, राइट. तो सॉल्व एग्जांपल में है राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, राइट. तो राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ each of the following numbers or fractions. See here, first question is given 2/3, right. So solution, equivalent fraction of 2/3 is, देखो, तो equivalent fraction means the fraction having the same value, राइट. तो हमें क्या करना है, मैंने लास्ट 6 क्लास में आपको बताया है कि 2/3 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहे तो बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेंगे. तो सी है, तो मैं इसे 2 से करता हूं, राइट. तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. अगेन सिंप्लीफाई, तो इसे सिंप्लीफाई करो आप. 2 2 2 2 2 जा 2 3 जा 2/3. सी 2/3, right. The value of fraction will be same, then the fractions are called equivalent fraction. Again 2/3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो आप, राइट. 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, राइट. अगेन 4 से करो, 2 4 जा 5 और 4 2 जा 8 and 4 3 जा 12. अगेन सिंप्लीफाई, वी गेट, राइट. 5 से करो आप, 2 5 जा 10 and 10/15, राइट. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 इज 4/6, 6/9, 8/12, right, 10/15, right. So these are the equivalent fraction of the given fraction. तो इसे सिंप्लीफाई करो आप और 2/3 फाइंड आउट करोगे. देखो 5 2 जा 5 3 जा 2/3. अगेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू, राइट. तो ऐसे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा. ओके, नेक्स्ट हियर सेकंड क्वेश्चन ऑफ सॉल्व एग्जांपल, सिंप्लीफाई. तो सिंप्लीफाई करना है, राइट. द गिवन a is given 2/3 plus 3/4, राइट. तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करना है, राइट. तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करना है तो हमारे पास 3 मेथड्स है, राइट. तो आप डिनोमिनेटर सेम करो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट. तो सी हियर, दिस इज 3 and 4 है, राइट. तो इसे हमें सेम बनाना है.
तो इससे तो 4 बनाओ, इससे तो 3 बनाओ, राइट। तो देखो फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, या तो फर्स्ट वन मेथड से करेंगे हम। तो 3 एंड 4 का एलसीएम निकालो आप। तो 3 से निकालो फर्स्ट, 3 1 जा 4 रिमेन्स, राइट। 1 1 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, राइट। एलसीएम, राइट। तो देखो तो 12 आ गया, राइट। तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ फर्स्ट, राइट। तो डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो 2/3 प्लस 3/4, तो इन दोनों को 12 बनाना है। तो 3 को क्या करो 4 से, बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, राइट। बोथ न्यूमरेटर को 4 से करो, डिनोमिनेटर को भी 4 से करो। और 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 प्लस 3 3 जा 9, 4 3 जा 12. If the denominators are same, then add the numerator or subtract the numerator. तो यहाँ जो साइन होगा वो करना है हमें डायरेक्ट। तो राइट हियर 12 ओनली वंस टाइम लेना है। 8 प्लस 9, तो 8 प्लस 9 इज 17, 17 डिवाइडेड बाय 12, राइट। 17 डिवाइडेड बाय 12, और इसे हमें मिक्सड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो 17/12 को देखो कैसे लिख सकते हैं। तो 12 17 है, 1 जा 12 रिमेन्स 5 है, राइट। इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रिमाइंडर, राइट। तो नेक्स्ट 5 डिवाइडेड बाय, तो दिस इज रिमाइंडर 5 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 जा 12 प्लस 5 अगेन 17 डिवाइडेड बाय 12 इज द आंसर, राइट। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, और इसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, और वी सॉल्व सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, राइट। तो 4 2 जा 8, अगेन 3 प्लस 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, राइट। तो 8 प्लस 9 is 17 divided by 12, or you write here 1 5 divided by 12. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट। तो देखो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो 8 प्लस 9 is 17 divided by 12, राइट। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम 1/5/12, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी गो टू exercise 1.1. See here in that first question, write four equivalent fraction to each of the following, right? Each of the following, right? तो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, राइट। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट 4/7, राइट। तो 4/7 के हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? द फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू। तो फ्रैक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए, राइट। तो देखो 4/5, तो सॉल्यूशन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 इज, तो देखो तो 4/7, तो क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है। तो बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को
सेम नंबर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। तो फर्स्ट में 2 से करता हूं, राइट। तो 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14। नेक्स्ट 4 डिवाइडेड बाय 7, 3 से करो आप, बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को 3 से करो। 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, राइट। तो नेक्स्ट 4 डिवाइडेड बाय 7, तो 4 से करो, 4 4 ज़ा 16, 7 4 ज़ा 28, और 5 से करो, to multiply both numerator as well as denominator by 5. 4 5 are 20, 7 5 are 35, right? The equivalent fraction of 4 by 7 is 8 by 14, comma 12 by 21, comma 16 by 28, comma 20 by 35, राइट। तो इसे सिंप्लीफाई करो, तो सी हियर 5 4 ज़ा 20, तो 4 होगा, 5 7 ज़ा 35, 4 by 7, तो सी हियर 4 by 7, 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 3, 4 ज़ा 3 7 ज़ा 4 4 ज़ा 4 7 ज़ा 5 4 ज़ा 5 7 ज़ा। दिस टाइप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखना है। रिमेनिंग प्रॉब्लम का आप सॉल्व कीजिए, ओके। सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी हियर द गिवन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन वी कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर, सी हियर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमें। तो 2 1 2 by 3 है, तो इसे हम फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे। तो सी हियर 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो 3 प्लस 2 इज 5 by 3, right? So 5 by 3, write the equivalent fraction of 5 by 3, right? This is improper fraction है, right? तो both numerator as well as denominator को हमें क्या करना है, सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से 2 से करो, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, नेक्स्ट 4 से करो आप, 20, 3 4 ज़ा 12, नेक्स्ट 5 by 3, तो 5 से करो, राइट। 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा 50, राइट। अगेन सी हियर 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 5 by 3, राइट। तो 5 by 3, राइट। तो मिक्सड फ्रैक्शन में रहने के बाद उसे आपको कन्वर्ट करना है। सो तो सी हियर 3 1 ज़ा 3, तो प्लस 2, 3 प्लस 2 इज 5 एंड 3 इज द डिनोमिनेटर्स, राइट। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5 by 3 इज 10 by 6, 15 by 9, 20 by 12 एंड 25 by 15, राइट। रिमेनिंग प्रॉब्लम आप होमवर्क में कीजिए, ओके। सी हियर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन एट, see here the given first question 11 by 2 plus 2 upon 1 by 3, right। 11 by 2 plus 2 upon 1 by 3 है। तो फर्स्ट इसे हम मिक्सड फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, राइट। 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 11 by 2 प्लस 6 plus 1 is 7 by 3, राइट। तो आप यहां से या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए या तो डिनोमिनेटर से कीजिए, राइट। मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करता हूं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 3 ज़ा 33 प्लस 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, तो ऐड करो तो 7 होगा, 3 प्लस 4 इज 7, 47 by 6, राइट। और आपको डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हैं। तो देखो यहां से, और 11 by 2 प्लस 7 by 3, राइट। तो एलसीएम निकालो, 2 एंड 3 का एलसीएम निकालने के बाद 6 आता है। तो देखो एलसीएम निकालने के बाद
तो 2 से निकालो, 2 1 सा 3 रिमेन्स, 3 से निकालो 1 1, 2 into 3 is equal to 6 LCM, राइट। तो LCM इज 6, तो इसे हमें 6 बनाना है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करो और इसे 2 से करो, राइट। तो देखो 11 3 जा 33 प्लस 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 6। If the denominators are same then add it, 33 plus 14 तो 47/6 is the answer। तो आपको इसे मिक्सड फ्रैक्शन में लिखना है तो भी लिख सकते हैं, राइट। रिमेनिंग प्रॉब्लम वी विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके। तो डू होमवर्क, थैंक यू।